ایاز صاحب اب جو ہمیں بھارت جس طرح اپنی ہی رسوائی کر رہا ہے ایک طرح سے، مطلب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس نے کہا کہ ہم نے دہشت گرد پکڑے، ان کے اپنے لوگ سوال کریں کہ دہشت گرد پکڑے تو وہ ہیں کدھر، شوشہ چھوڑ دیا سرجیکل اسٹرائک کا. اب کیا عالمی دنیا میں کیا پیغام جا رہا ہے جو حرکت کر رہا ہے بھارت؟ سر، عالمی دنیا میں معاملات طے کرنے ہیں ہم نے اور ہندوستان نے. عالمی کمیونٹی نے ہماری مدد کو نہیں آنا. کچھ اور انہوں نے انٹروین کر کے مودی کو للکارنا نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، ہزیمت اٹھا رہے ہو، یہ کر رہے ہو. یہ ہم نے آپس کے معاملات کرنے ہیں. کیسے کریں آپس کے معاملات جب ڈائیلاگ ہی نہیں ہو رہے ہیں، جب بات چیت نہیں ہو رہی، سفارتی تعلقات خراب ہو رہے ہیں، تو بات چیت کیسے ہو؟ آپ کوئی پوری خطہ جو ہے دنیا کا، آپ کو کوئی ایک میڈیٹر نہیں ملے گا جو کہے گا کہ میں آپ کی بات کرتا ہوں اور انڈیا مان جائے کہ وہ ایسے کرے گا. ہم تو کہتے رہتے ہیں کہ فلانے کو کرنا چاہیے، فلانے کو کرنا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی تو بس وہ لفظ ہے. جب آپ کے فائدے میں ہو، آپ کے ساتھ ہو اور آپ کچھ کر رہے ہوں تو وہ فائدے کی بات ہوتی ہے، اچھی بات ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ اٹھ کے امریکہ یا ویسٹرن کمیونٹی کوئی نہیں کہہ رہا کہ وہ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں یار ٹھنڈے، دونوں کو کہہ رہے ہیں، وہ تفریق نہیں کر رہے. دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا ہاتھ جو ہے اپنا ہولا رکھیں اور تھوڑا نیچے کریں کشیدگی کو، اس کو زیادہ بڑھائے نہیں، آپ کے فائدہ میں نہیں ہے. امریکہ بھی مسلسل یہ کہہ رہا ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ یہ جنگ ہے. تو ہمیں اب دیکھ کے اگر ان کی یہ جنونی کیفیت ہسٹیریا اس وقت اگر بنا بھی ہوا ہے، ہمیں یا تو ہمیں کوئی ڈر ہو، کیا ہمارا جو دفاعی صلاحیتیں ہیں مضبوط نہیں ہیں، کیا ہماری فوج جو ہے بڑی اور مضبوط اور اب وزیرستان کے بعد، فاٹا کے بعد بیٹل ہارڈنڈ فوج نہیں ہے. جتنا بیٹل ایکسپیرینس ہماری فوج کو ملا ہے پچھلے 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں، ہندوستان کی فوج کو نہیں اتنا ملا. نیوکلیئر پاور ہے، ہمارا آرمڈ کور اتنا ہی بڑا ہے جتنا کہ ہندوستان کا. ایئر فورس ہماری بڑی اچھی ہے اور وہ اس نے بھی وزیرستان میں ٹی ٹی پی کے خلاف ایکسپیرینس. تو ہمیں جب اتنا صلاحیتوں کے بارے میں اعتماد ہے تو ہمیں پھر لہجہ تھوڑا نیچے رکھنا لہجہ تھوڑا نیچے رکھنا چاہیے. ہماری فوج جو ہے بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، مگر کیا ہماری فورن پالیسی اور ہماری ڈپلومیسی مضبوط ہے؟ اس پر بات. اور جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے اور بھارت کی طرف سے جارحانہ کارروائیوں میں شدت آتی جا رہی ہے، تو پاکستان نے ایسے وقت میں کیا تیاری کیا ہے؟ صاحب، اگر ہم کہیں کہ جب سے یہ معاملات اٹھے ہیں، آپ سمجھتے ہیں پاکستان نے مدبرانہ طور پہ تو بہت اچھا ایک پورٹرے کیا ہے، ایڈریس بھی کیا ہے، لیکن ڈپلومیٹک لینگویج کا جواب ڈپلومیسی سے، فورن پالیسی ہماری وزیر اعظم صاحب جو خود یہ منسٹری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں ان کے پاس اضافی جو ہے پانی اور بجلی کا وہ بھی ہے. آپ سمجھتے ہیں سب اپنا کام کر رہے ہیں صحیح طریقے سے؟ نہیں، یہ آپ ٹھیک نقطہ اٹھا رہے ہیں. دیکھیے، جو ہندوستان میں ہے، ایک کیبنٹ ہے، ایک پرائم منسٹر ہے، فیصلے وہ کر رہے ہیں. اور کہ ہندوستان کا ریسپانس کیا ہونا چاہیے یا کیا نہیں ہونا چاہیے، وہ فیصلے وہ کر رہے ہیں اور وہ ڈائریکشنز دے رہے ہیں ملٹری کو. ان سے سنتے ہیں، یہ ہے، ایسے ہوتا ہے. اب ایک تو آپ نے، اب میں کیا نام لوں، وہ مٹی کے مادو جو ہیں آپ نے اکٹھے یہاں پہ کیے ہوئے ہیں، جن کا کام ہے فورن پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی چلانے کی. میں 3 نام دے سکتا ہوں. 2 جو ہیں خارجہ امور کے حوالے سے، ایک جو ہے نیشنل سیکیورٹی والے، جن کا یہاں کوئی کام نہیں ہے. اجیت ڈوبھال جو ہندوستان کے ہیں، وہ بڑا افیکٹو ممبر ہے ان کی گورننگ ٹیم کا، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر. یہاں پہ ایسے نہیں ہے. یہاں پہ شارٹس جو ہیں، جو زیادہ فیصلہ سازی سوچ وغیرہ کہیں اور سے آ رہی ہے. یہ ایک تھوڑی ہماری کمزوری ہے. ہمیں ایک سٹیچر کا، وزن کا، گریویٹاس کا ایک فورن منسٹر اس وقت درکار ہے، ہمیں درکار تھا. اب جیسے آپ دیکھیں نا، یہ جب ٹینشن ہوتی ہے تو پھر جب ٹینشن ہو گئی ہے تو پھر حوصلہ دکھائیں. اب میں تو بڑا پریشان ہوا، وہ جو انڈس واٹر بیسن ٹریٹی پہ جو ہندوستان سے اندیا آیا تو یہاں پہ ایسے لگ رہا تھا جیسے پاکستان میں بخار ہو گیا ہے. اور جو آپ کے ایڈوائزر ہیں فورن افیئرس کے، انہوں نے کہا جی اگر وہ ہوگا تو ڈکلیریشن آف وار ہوگا اور فلانا ہوگا اور ڈمکانا ہوگا. تھوڑا سا تحمل سے یہ کر کے
آپ वर्ल्ड कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात कर रही थी, तो हमने एड्रेस करना है उनको, लेकिन किसी तरीके से हम करें और बताएं कि देखें ये चीज हो रही है। तो उसमें आपका केस जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, पर कई दफा जब आपका केस स्ट्रांग हो, वकील आपके कमजोर हो, तो आपका अच्छा भला केस जो है उसको भी नुकसान पहुंचता है। और आपका केस कमजोर भी हो लेकिन वकील आपका तकड़ा भारी हो, तो वो आप अदालत में आप छा जाते हैं। अब वो कैफियत जो है, देखिए अफसोस से कहना पड़ता है, क्योंकि जब आप अपने बारे में और इन हालात में, आम हालात हों तो आप जो मर्जी कहें, नाम लें, ये लें, फलाना लें, पर इन हालात में थोड़ा मोहतात तरीके से बात करनी पड़ती है। वो जो एक हमें फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी टीम में थोड़ी सी डायनामिज्म, थोड़ी सी चुस्ती, थोड़ी सी वो आपको तेजी, नजर नहीं आती दानियाल अजीज में और जी हाँ वो है वो कलाल वो ऐसे फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं है? मैं यही कह रही, ऐसे फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं है? वो भी चुप, उनको दे देना ताकि भड़कियां तो कम से कम सही से लगे भारत को। वो तो मेरा ख्याल है कि अगर वो इमरान खान का कोई ताल्लुक नरेंद्र मोदी से वो पता चल जाए फिर वो बोल उठेंगे, मेरे ख्याल वो भी नहीं वो बोल रहे। यार साहब, एक जगह तो मुझे लगता है कि इंडिया ऑलरेडी जीत गया। देखिए, हमने 1 घंटा सर्व कर दिया। जो इस सारे ड्रामे की रूह है वो है जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीरियों की। वहां हमने बात नहीं की। हमने किसी ने ये नहीं कहा कि वहां 3000 आंखों की बीनाई छीन ली गई है, वहां 10,000 लोगों को जख्मी कर दिया गया है, वहां 100 लोगों की जान ले ली गई है, वहां खवातीन के गैंग रेप किए गए हैं। हम बात कर रहे हैं कि इंडिया इस वक्त बॉर्डर पे क्या कर रहा है। इंडिया यही चाहता है कि कश्मीर से अटेंशन डाइवर्ट कर दी जाए, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर की। तो वहां तो आप देखिए कि वो कामयाब सर वो भी कर ऑलरेडी नजर आ रहा है, वो भी कर रहा है और बेहतरीन तरीके से अपनी एक डिप्लोमेसी को कामयाब बना रहा है, मुल्कों को साथ अब आप ले रहा बात है। कर रहे हैं, मुझे जिस चीज का डर है, जिस चीज का खदशा है, ये इंडिया जो हमारे पे जंग मुसल्लत कर रहा है वो हार्ड वॉर जिसको कहते हैं, जिसमें टैंक और तैयारों का इस्तेमाल होता है, ये वो जंग नहीं है। वो जंग लड़ रहा है सॉफ्ट वॉर, और इस सॉफ्ट वॉर के अंदर सिफारतकारी का इस्तेमाल है, इस सॉफ्ट वॉर के अंदर मीडिया का इस्तेमाल है। और सिफारतकारी के हवाले से हमारे पास ना तो टीम है, ना उस टीम ने कोई डेवलप की है नैरेटिव, ना हम दुनिया के पास कोई अपना नैरेटिव, अपनी तस्वीर, अपना नुक्ता नजर, अपना नजरिया पेश करने के काबिल करते हैं। एक वो डॉक्टर मलिया लोधी बेचारी वहां बैठी हैं और वो तकरीरें करती हैं, कुछ जाता है मामला, लेकिन हमारे पास एज टीम कोई नहीं। इंडिया के पास या सब मेरी नजर में उनके पास पूरा प्लान जो है वो तैयार है। उनका खित्ते के हवाले से भी प्लान तैयार है, वो आपको आइसोलेट कर रहे हैं, अफगानिस्तान, भूटान और बांग्लादेश को सबको साथ मिला के। उनका कश्मीर के हवाले से भी प्लान तैयार है। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ 7 लाख फौजी भेजने हैं, उसके बाद हमने यहाँ सेटलमेंट्स करनी है और मुसलमानों की जो अक्सरियत है उसको कम करना है, जो इजरायली वाला मॉडल है। उनका पाकिस्तान के हवाले से मामला बिल्कुल तय है कि हमने फंडिंग करनी है, हमने कोई किसी किस्म की जंग इनसे नहीं करनी, यहाँ दहशत गर्दों को फंड करना है और कोशिश करनी है कि पाकिस्तान की किस तरह तकसीम देखिए हमें ये देखना चाहिए कि पहले हमें ये तयन करना चाहिए कि हमारा मुफाद किस चीज़ में है। कशीदगी बढ़ाने में कई दफ़ा कौमें जो हैं दानिस्ता तौर पे उनके मकासद ऐसे होते हैं, वो चाहती हैं कि टेंशन बढ़े और फिर हम कोई कार्रवाई कर सकें। हमारा मुफाद किस में है कि टेंशन बढ़े, कशीदगी ज़्यादा हो या कशीदगी कम हो। और इस किस्म हम देखिए, हमारा मेन जो फोकस इस वक्त हम फंसे हुए हैं, हम वेस्टर्न फ्रंट पे फंसे हुए हैं। हमारी 2 लाख फौज वहां पे है, हम जंग टीटीपी से कर रहे हैं, उनके एलिमेंट से कर सर, अगर हमारे पर मुसल्लत की जाए मशरकी बॉर्डर के ऊपर, तो फिर तो हमारे पास कोई चारा नहीं देखिए मैं नहीं समझता हूं कि जंग होने वाली। सर, ये सिफारती जंग कर रहा है। मैं कह रहा हूं सर, सिफारती जंग भी, जो दाना लोग होते हैं वो कहते हैं कि जंग वो होती है जो बगैर लड़े हुए आप जीत जाए। सबसे बड़ा जर्नैल कहा जाता है कि वो होता है जो गोली चलाए, जो गोली चलाए बगैर अपने मकासद हासिल कर दे। जंग से क्या होता है, जंग में तो दोनों का नुकसान वहां पे तो हम तैयार नहीं। तो सर देखिए, पहले ये बात हमें देखना एक चाहिए। अब ये मैं बड़े बड़े मोहतात तरीके से ये जो इंसिडेंट्स 2-3 हुए हैं, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, तो हमें देखना चाहिए ये कहां से आ रहे हैं और हमें नजर और तदारक उनका करना चाहिए। क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट बॉर्डर के पास होता है, आपकी तमाम सफारतकारी,
तमाम जो श्रीनगर में वो जो हो रही है उनकी वो पीछे पसे पुश्त आ जाती है और फोकस इस पे आ जाता है जैसे अब हो रहा है। तो इससे हमारा जो केस खराब हुआ है, जो हमारे पे जो प्रेशर है, सर हमारी अपनी कोताहियों से हमारा केस खराब नहीं हो रहा। हम बैनुल अक़वामी तौर पे अपना मुकदमा सही तौर पे लड़ पा रहे हैं। आप कुलभूषण यादव की बात करते हैं, अभी तक आपने दोषी नहीं वहां पे दी यूनाइटेड नेशन में। शाज़िया बात ये है, हमारी बड़ी वो काबिल जो है मंदूब यूनाइटेड नेशंस में, जब उन्होंने परसों कहा कि ये लगता है कि उरी इंसिडेंट है जो कि स्टेज्ड है और इसकी तमाम खसूसियात एक स्टेज इंसिडेंट की हैं। मुझे शाज़िया आप एक बता दें, यूनाइटेड नेशंस में कितने ममालिक हैं? कोई 150 के करीब। 190 कोई एक भी इस आर्गुमेंट को बाय करेगा? चाहे ऐसा ही हो। सर इंडिया की तारीख तो रही है ऐसा काम करने में। सर मैं कह रहा हूं कि जब आप कन्विंस करते हैं, हमने अदालत की अभी वो बात की थी, आप ज्यूरी को कन्विंस करते हैं, जज को कन्विंस ये करते बताइए, हैं। ये एक आपस में हम बात तो आपने जज और ज्यूरी को आपने कन्विंस कर। ज्यूरी इस वक्त सर ज्यूरी इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी है। सर 1,35,000 अरेस्ट किए हैं इंडियंस ने कश्मीर के अंदर, उनमें से एक भी कनेक्शन पाकिस्तान से नहीं मिलता। जो 100 के करीब शहीद किए गए उनमें से एक भी कनेक्शन पाकिस्तान के साथ नहीं मिलता। सर जो 10,000 जख्मी पड़े हैं उनके पास, उनका कोई एक कनेक्शन भी पाकिस्तान के साथ नहीं मिलता। एक नुक्ते पे मैं बात कर रहा हूँ, जो हमने मौक़िफ़ उठाया है, जो आपका मौक़िफ़ था पहले दिन, मेरे ख्याल आपको सुन के मेरे ख्याल मलिया लोधी ने वो किया होगा कि ये स्टेज है हिंदुस्तान ने खुद। मैं कह रहा हूं कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक मुल्क तो होना जो कहे कि पाकिस्तान का ये स्टैंड ठीक है। सर उरी के ऊपर तो जितने ममालिक ने भी बयानात, ऑफिशियल बयानात दिए हैं, उन्होंने कंडेम किया है इसको, लेकिन उन्होंने कहीं क्रॉस बॉर्डर या पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। एकदम नहीं कोई कहता ना सर, एकदम कोई नहीं है। सर इंडिया ने तो एकदम कर दिया सर, इंडिया तो फौरन कह दिया कि ये इसने किया है। सर क्या बात हुई, बलूचिस्तान में कोई फायरिंग वो होता है तो हम कह देते हैं रॉ है, वो तो वो करते हैं। ऐसी बात नहीं सर, वहां तो इंडिया खुद कहता है कि मैं कर रहा हूं बलूचिस्तान में। नाज़रीन यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खुद से कहता है मैं कर रहा हूं। नाज़रीन भारतीय जवारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत हमारी फौज में है, क्योंकि दुनिया की बेहतरीन छठी फौज में इसका शुमार होता है। लेकिन अगर हम बात करें अपने अंदर के मामलात की, तो पाकिस्तान को इस वक्त बैरूनी और अंदरूनी दोनों चैलेंजेस का सामना है। अयाज साहब, इस वक्त जो सिचुएशन हमें नजर आ रही नवाज शरीफ साहब के लिए, एक तो भारत उनके लिए चैलेंज बना ही हुआ है, लेकिन आप समझते हैं कि जो अंदरूनी मामलात हैं शायद उनका फोकस इस तरफ हो ज्यादा कि ये जो धरने वगैरह हो रहे हैं, ये जो एहतजाज चल रहा है, इस वजह से वो उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे? इससे देखिए अब ये इससे फर्क तो पड़ता है। ये बहरान चल रहा है और इसमें रोजाना कुछ ना कुछ नया एक चीज आ जाती है। कोई इंडस बेसिन ट्रीटी की बात आ जाती है, कुछ और आ जाती है, कुछ एलओसी, आज सारा दिन वो एलओसी वाली रही, कल पता नहीं क्या होता है। अब इसमें प्राइम मिनिस्टर को सारे सियासी जमातों के सरबराहों को बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए, एतमाद में लेना चाहिए या नहीं, एक बड़ी पुरएतमाद लेकिन हौसले वाली तकरीर कौम से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जब आप कौम से तकरीर करते हैं तो उसमें आप एक मैसेज पिन्हा हिंदुस्तान को भी आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप किसी अंदरूनी खलफशार के शिकार हों और आपको पता हो कि आप पे इल्ज़ामात तरह तरह के, मैं अब उसका नाम नहीं लूँगा कि कौन से इल्ज़ामात हैं, तो फिर वो जो आपका एक वो जो अंदरूनी जो होता है, जो एक वो कॉन्फिडेंस होती है, वो फिर वो नहीं रहती। इसलिए जो ये इल्ज़ामात की सियासत रही है पूरे इस गर्मियों में 3, 4, 5 माह से, और उसका कोई खातिर खा हल जो है अभी तक जो है हमें मुयस्सर नहीं आ रहा, उससे फिर ये इफेक्ट होता है। इस वक्त तो होना चाहिए था कि फौरी तौर पे सर एपीसी कॉल करते, ऑपोजिशन से मुशावरत करते, ऑपोजिशन का भी काम था, सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, ऑपोजिशन को भी चाहिए वो करके कि देखिए हमारे आपस के इख्तिलाफात रहेंगे हैं, वो एक तरफ, ये जो खतरा कौम को है हम सारे ऐसे हैं, तो ये ऐसा मैसेज होना चाहिए था। लेकिन उसमें लीडरशिप देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर इज द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर, लीडरशिप उन्होंने दिखानी है या नहीं दिखानी, किसी और ने नहीं। जो जिम्मेवारी इस वक्त है वो उन पे है, कौम को लीड उन्होंने करना है, पर लीड करने की वो बात तो कोई नजर आए ना। अब सवाए रवायती बयानों के
कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम ये देंगे, वो आप 65 से लेके 71 से लेके कारगिल से लेके आज तक वो आप बयान निकालें और आज आप जारी कर दें, वही बयान होंगे, वही अल्फाज होंगे, वही वो होगा मुक्का लहराना जो है उसमें। लेकिन इस वक्त वो हौसला देना चाहिए, इसका इदराक होना चाहिए कि पाकिस्तान को खतरात किस चीज से। आप देखिए ना, ये साख जो है फजूल सी तंजीम है, कोई इसका कोई मकसद नहीं है, कोई हल नहीं है, लेकिन सिंबॉलिकली जब 3-4 ममालिक कहें कि हमने नहीं आना, तो वो एक हमारे लिए उसका जो मफहूम है, जो मानी है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है कि पाकिस्तान, हम आइसोलेटेड नहीं है ऐसे, चीन है, ईरान है, बाकी है, हमारा श्रीलंका है, सब कुछ है, लेकिन ये जो तासुर है ये अच्छा नहीं है। हमें थोड़ी ज्यादा एतमाद से थोड़ा वो चलना चाहिए, और बौखलाहट का शिकार हिंदुस्तान हो भले हो, हमें जो है कारकर्दगी हमारी बेहतर होनी चाहिए। और एक और चीज, हमें इस वक्त ये जो उधार वगैरह जो है ना, ये सुकुक बॉन्ड्स और फलाना जो है 700 मिलियन एक और ले रहे हैं, पता नहीं क्या, इस पे थोड़ा नहीं लेना चाहिए। सर दो हकायक इंडिया के हवाले से, जमीनी हकायक, एक माशी हकीकत उनकी, इंडिया इस वक्त कोई 400-425 अरब डॉलर की इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट उसकी 250-300 से ऊपर नहीं जाती। कोई 150 अरब डॉलर का खसारा है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से वो पूरा करता है। सर अगर किसी किस्म का वो जंगी हरबा इस्तेमाल करता है तो माशी तौर पे वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, वो सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहली 2-4 गोलियां चलने के बाद भाग जाएगी, इंडिया के रुपए का बहुत बुरा हाल हो जाएगा और इंडिया की मईशत जो है वो घुटने टेकने लगेगी। फिर तो मेरे ख्याल हमें 1-2 गोलियां चला देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो इंडिया की तरफ यहाँ तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ नहीं, यहाँ तो आ नहीं, तो हमें तो दूसरी हकीकत उनकी जो जमीनी फौज के हवाले से, उनके पास जो मोबाइल आर्टिलरी है, अगर वो हमला करना चाहते हैं पाकिस्तान, उनके पास मोबाइल आर्टिलरी तकरीबन ना होने के बराबर है। उनकी जो एयरफोर्स का हाल है, वो मिग 21 को अंदर इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर जो हैं वो कहते हैं फ्लाइंग कॉफिन्स, कि ये उड़ते हुए ताबूत हैं, इतने गिरते हैं वो। उनके पास किसी किस्म की 7 लाख फौजी उनके कम से कम कश्मीर में जो हैं वो नेल डाउन है। इस वक्त उनके पास किसी किस्म की कैपेसिटी भी नहीं है और माशी तौर पे वो ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते अगर वो चाहें भी तो ये और वजह है। फिर अगर ये जैसे आप बयान कर रहे हैं, अगर ये सूरत हाल है, तो फिर तो हमें और एतमाद से बात करनी चाहिए, और हमें फिर अपना जो लहजा है, जो जबान है, उसको जो पूरे एतमाद, सफारतकारी की तैयारी पूरी होनी, वो जंग लड़ रहा है सफारतकारी की। सर देखें, अभी तक तो ये मिट्टी के मादू जो हैं वो कहीं जा नहीं रहे, तो यही है, इन्हीं से आपको गुजारा करना पड़ेगा, और ये आपको दुआ करनी पड़ेगी कि इन्हें कुछ आप विटामिन के टीके लगाएं और यही वो करें। यहाँ पे देखिए, पाकिस्तान में जो है एक वो एतमाद और वो रिजॉल्व और रेजिलियंस का पैगाम आ रहा है, पर जो सिविलियन गवर्नमेंट थोड़ा सा। आज आपको कैसे इससे वो जो तमाम हमारी जो होती रही मामलात, मीटिंग्स होते रहे, राब्ते होते रहे, आपको क्या लगा बिहाइंड द सीन क्या हो सकता है? आर्मी चीफ से बात हुई है, फिर उनकी कल का वफाकी काबिनेट की मीटिंग भी है, आज भी वजीर आजम साहब ने सबको कॉल की भी इजलास के लिए। सर उनका जो है, जो मेन जो है डिसीजंस, हमें तैयार रहना चाहिए, हमें इक़दामात करना चाहिए। ये जो है ना, इस पे हम वो कर नहीं सकते कि ये जो बिल्कुल बात सही की है इन्होंने, लेकिन इस पे आप अपनी प्लानिंग बेस नहीं कर सकते कि इंडिया के पास कैपेबिलिटी नहीं है। हमें तैयारी ये करनी चाहिए कि इंडिया हर चीज कर सकता है, अगर ये करे तो हमें क्या करना चाहिए, अगर ये करे तो हमें क्या करना चाहिए, वो सब कुछ होना चाहिए। फौजी हवाले से आई थिंक तैयार है, फौजी हवाले से लोग तैयार है, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे तैयार है। सफारती हवाले से मुझे लगता है कि हमारी बहुत ज्यादा कमजोरियां हैं। या फिर प्लेटफॉर्म का सर हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इंडिया में आप देखिए तो उनकी सियासी क़यादत, उनकी फौजी क़यादत, उनका मीडिया, सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे लगते हैं। हमारे यहाँ ये हाल नहीं है। सब यहाँ भी इत्तेहाद है, सब कुछ है, पर थोड़ा, लेकिन सबसे बॉटम लाइन ये है कि टेंशन ना हिंदुस्तान के फायदे में है, ना हमारा कोई मकसद उससे पूरा होगा। लेकिन हमारी तैयारी बहुत कमजोर है, मतलब जो 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते से ये हम देख रहे हैं, मगर हमें एक्टिव कोई नजर नहीं आ रहा। टीम के बगैर ये काम नहीं हो सकता। ये इल्जाम आप उन पर डाल सकती हैं कि वो टीम बनाने में नाकामयाब रहे। देखिए ये एक आदमी का काम नहीं है। वो सुषमा स्वराज का हाल देखिए ना, कि उन्होंने सुषमा स्वराज के हवाले ये काम किया हुआ है, उसने पूरी एक नीचे टीम बनाई हुई है। अमेरिका में सर उनकी जो इंडिया कॉकस है वो कंट्री स्पेसिफिक हवाले से सबसे बड़ा कॉकस, इजराइल के कॉकस से उनके पास बड़ा, हमारे पास कोई भी नहीं है वहां पे लॉबी करने के लिए। चले सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर।